Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Student, today date is 30 November 2020 and I am teaching you chapter 19 and name of the chapter is our transport. So student, I have completed all the topics which are given in this chapter, that is your land means of transportation, that is your land transport, air transport and water transport. I have completed all the topics in the given chapter. Now student, today let first of all discuss some of the key words of this chapter. What are national highways? So what is the national highways? So national highways connect state capitals, big city, towns and ports. So these are our national highways. State highways, highways built in a state. जो हाईवेज होते हैं हर स्टेट के अपने अपने हाईवेज होते हैं, ठीक है। जो स्टेट जहां खत्म हो जाती है अगली स्टेट स्टार्ट होती है, उसका हाईवे वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाईवेज विच आर बिल्ट इन द स्टेट। मेट्रो, this is also metro trains. These are in big cities and these trains move underground or an elevated tracks. ये जो trains हैं ये अंडरग्राउंड भी चलती हैं, एलिवेटेड मतलब जो ऊंचाई पे ट्रेन की ट्रैक्स हैं वैसे भी ये चलती हैं, ठीक है। फिर एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स डिजीज विच स्प्रेड क्विकली अमंग पीपल। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है, ये एक ऐसी डिजीज है, वी आर टेकिंग लॉट ऑफ प्रिकॉशन अगेंस्ट दिस डिजीज बिकॉज इट स्प्रेड वेरी इजली इन द पीपल। सो कार्गो प्लेन्स, सो कार्गो प्लेन्स आर आल्सो यूज्ड टू कैरी द गुड्स। ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर में आपको बताया था। एंड वी कैरी विच टाइप ऑफ द थिंग्स विच, जो चीजें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं या खराब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं, ठीक है। लाइक फ्रेश वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स। सो दीज थिंग कैन आल्सो बी कैरीड टू द फार प्लेसेस with the help of the cargo planes. Next है things to remember. The use, first point is the use of means of transport depends upon factor like distance, time and money, ठीक है। So the use of mean of transport depends on factor like distance, time and money. देखो जब भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू गो एनीवेयर, देन जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करते हैं, सो व्हाट थिंग्स वी, द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम चूज करते हैं, सो व्हाट थिंग्स वी कीप इन आवर माइंड एट दैट टाइम, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर, दैट इज लाइक हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू गो एंड हाउ मच टाइम, इज इट क्लियर, हाउ मच टाइम इज टेकन बाई विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा जाने में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मनी। नेक्स्ट है पॉइंट है रोड्स, रेलवेज, रोड्स है, रेलवेज है, वाटरवेज एंड एयरवेज आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट, सो हमने इसे थ्री पार्ट्स में स्टडी किया, दैट इज द रोडवेज, सॉरी दैट इज द लैंड ट्रांसपोर्ट, after that water transport and air transport. And when we are studying the land transport, again further it is divided into two parts, that is roadways and railways, variety of vehicles moving on the road,
that is roadways, and the vehicle which is moving on the track, that is their train, okay, or metro trains. So these are the example of railways. Next, next point which is given, railways allow cheap travel over long distance or land. What is the meaning of this? It means if you are going with the train, so amount of money which you have to pay is less than air transport also and then land transport also. जैसे बेटा आप 5-6 घंटे की जर्नी अगर लैंड ट्रांसपोर्ट से करते हो, बस से करते हो या कार से देते हो, देन यू हैव टू पे मोर अमाउंट ऑफ मनी. सबसे इस एंड इफ यू आर going to the distance places with the train, so the amount of money which you have to pay in comparison to land transport or in comparison to air transport is less in the case of a railways. Next point is given, ships carry not only people but also good. So I have already explained you, there are a big ships which are known as cargo ships, which are known as cargo ships. Okay, there are big ships which are known as cargo ships, and these ships are used to carry huge quantity of a goods from one country to the another. जो बेटा मैक्सिमम जो भी आपका ट्रेड का काम हो रहा है, ट्रेड मतलब व्यापार का काम हो रहा है, वो सारा किससे होता है बेटा? डेट इज थ्रू योर वाटर वेज से होता है. ठीक है, मैक्सिमम पूरा, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो अर्थ हमें पता है ना कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, तो ये कॉन्टिनेंट्स आपस से एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस में है और इनके बीच में क्या है? दैट इज द वाटर बॉडीज. ठीक है, सो इन द ओल्ड टाइम with the waterways only the people are able to discover the different countries. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, एयरप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. अगर आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो इट इज यस, इट इज ट्रू टू से डैट एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा क्या है? वो है आपका एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. बट अनदर ओनली ड्रॉबैक आप ये कह सकते हो कि इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली भी है, पर इट कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन लेस टाइम, बट इट इज at the same time it is costly also. Next point, water transport is the cheapest but slower mean of transport. Okay, very good. Yes, this point we have already discussed, that the water transport is the cheapest. ओके, सो वाटर मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ इस वर्ड को, चीपेस्ट मीन सबसे, इस मामले में सबसे सस्ता है. वाई? द रीजन इज दैट, देखो बेटा आपके रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, एयर ट्रांसपोर्ट है, इन दिस वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि बेटा जितने भी वैरायटी ऑफ व्हीकल्स चल रहे हैं जिनको आप लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हो, तो ये किस पे मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग ऑन द रोड्स. सो फॉर the construction of the roads, lot of money we have to spend. In the same manner student, when we are talking about the railways, so these vehicles are moving on the track, so lot of money is spent on this. And if we are talking about the air transport, so from where the aeroplane take a flight, it take flight from the airport, and before the flight the aeroplanes run on the runway with a very high speed, and then they take the flight, so student,
in all these large amount of money is required, but in the same time, if you are talking about the water transport, it is a natural resource which is already present in the nature. हमें कहीं से वाटर लाना नहीं पड़ता है, हमें तो पहले ही से पता है अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर ही है. इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन वाटर इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. हाँ, एक चीज है कि इट इज, अगर हम कंपेयर करते हैं विद द अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इफ वी कंपेयर इट विद द अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देन इट इज स्लोअर देन द other mean of transportation, that is land transport and air transport. So student, in today video I discuss the keywords also with you and things to remember also. Now let us start with the book exercises of the chapter. Question number 8. Tick the question number 8. Tick the correct answer. First one is in India, we have roads connecting in India. We have roads in India. We have roads connecting towns and cities. Called it dash. So option number A, note down from the board. Option number A, highways. In India, we have roads connecting towns and cities. Highways. Option number B, state highways. Option number C, कच्चा रोड. ऑप्शन नंबर बी, पक्का रोड्स. ठीक है. नाउ सी, ऑल ऑफ यू सी फ्रॉम द बोर्ड. In India, we have roads connecting towns and cities. So कच्चा रोड तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज कच्चा रोड एंड पक्का रोड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोड. वन इज नोन एज मेटल रोड एंड अनदर इज नोन एज अनमेटल रोड. सो मेटल रोड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्टोन से बनता है, सीमेंट से बनता है,
ये सब चीजें यूज करके बनता है। तो दैट टाइप ऑफ रोड इज नोन एज पक्का रोड। और कच्चा रोड क्या है? ऑफनली यू सी दिस रोड इन द विलेज एरियाज, ठीक है। मड है, मिट्टी है, स्टोन्स हैं, ब्रिक्स, ये सब यूज करके जो रोड्स बनता है। इट इज नॉट ए हार्ड वन, ये स्ट्रॉन्ग रोड नहीं होता है। इज इट क्लियर? हाईवेज और स्टेटवेज। अब देखो, इन इंडिया वी हैव रोड कनेक्टिंग टाउन एंड सिटीज। और टाउन और सिटीज को बेटा कौन कनेक्ट करेगा? हाईवेज कनेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि स्टेट हाईवेज हर स्टेट में होते हैं, स्टेट हाईवेज सब स्टेट में होते हैं। तो इन इंडिया वी हैव रोड कनेक्टिंग टाउन एंड सिटीज कॉल्ड इट हाईवेज। So note down the answer on the board. Next, question number 2. Indian Railway Network, Indian Railway Network, Indian Railway Network is the Indian Railway Network is the Indian Railway Network is the dash largest in Asia. First option, first option number B, second option number C, third option number D, fourth. Okay, so students, see on the board, Indian Railway Network is the dash largest in Asia. So student, when I am talking about the Indian Railways, at that time I have already explained you that what is the position of Indian Railway, what is the position of Indian Railway in the world? That is a fourth position. And when we are talking about the position of Indian Railway in our continent, which is known as Asia, so in that the position of our Indian Railway is second position. So the right answer is second. Note down the answer. This is the right answer, second. What is the position? Position is the second position. Next question. Question number 3. Dash carry petroleum and oil. Question number 3. Dash carry petroleum and oil. Option number A. Option number A.
boats. Option number B, tankers. Option number C, passenger ships. Option number D, cargo ship. So student, dash 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 carry petroleum and oil. सी देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को वाटर ट्रांसपोर्ट के समय ये चीज बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कर दी है। जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है, मीन्स जो व्यापार होता है, हम सामान को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, ठीक है, या उनसे खरीदते हैं, वो सब कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट से ही होता है। तो ठीक है, वो सारी चीजें वाटर ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है, ठीक है। सो डैश कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल। देखो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां बहुत बड़े बड़े ऑयल वेल्स हैं। सो द कंट्रीज वो अदर कंट्रीज को क्या करती हैं, बेचते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दैट कंट्रीज हाउ द पेट्रोलियम ऑयल कम इन द अदर कंट्रीज। सो बाय बोट्स। तो बोट्स तो बेटा बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है, और ये चलती भी रिवर्स में है। सो टैंकर्स, टैंकर्स में ऑयल होता है बट व्हेन इट कम्स, ठीक है, टैंकर के अंदर ऑयल को रखा जा सकता है। यहाँ बात हो रही है डैश कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल। टैंकर कोई, टैंकर मतलब कोई कंटेनर है जिसमें ऑयल में आपने रखा है, टैंकर, ठीक है। जो टैंकर्स होते हैं जिनमें ऑयल को हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब डैश कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल, तो ये ठीक है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अदर कंट्री से तो टैंकर से नहीं ना आएगा बेटा, ठीक है। टैंकर में ऑयल कैरी होता है, दैट इज अ राइट। कुछ बच्चे सोचते नहीं टैंकर तो राइट आंसर है, बट सर तो ने बोला नहीं ये नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि व्हेन द ऑयल इज कमिंग फ्रॉम द अदर कंट्री, दूसरी कंट्री से आ रहा है, पैसेंजर शिप में भी नहीं आता है। सो द पेट्रोलियम एंड ऑयल कम विद द कार्गो शिप, दिस इज द ह्यूज। जैसे देखो ट्रेन की बात की थी, एक पैसेंजर ट्रेन होती है जो पैसेंजर्स भी कैरी करती है और गुड्स भी, और एक गुड्स ट्रेन होती है जो सिर्फ गुड्स कैरी करती है, पैसेंजर बिल्कुल नहीं लेके आती है, सिर्फ गुड्स। सो कार्गो शिप, दिस आर द ह्यूज शिप्स, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, एंड विद द दिस शिप्स द कंटेनर्स ऑफ ऑयल्स कम फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। फोर्थ क्वेश्चन है डैश अलाउ, क्वेश्चन नंबर 4, dash allows goods dash allow goods to be delivered to be delivered dash allow goods to be delivered from one place to another। ऑप्शन नंबर ए, वाटरवेज। ऑप्शन नंबर ए, वाटरवेज। ऑप्शन नंबर बी, रेलवेज।
ऑप्शन नंबर सी रोडवेज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो डैश अलाउज गुड्स टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये वन प्लेस टू अनदर कह रहा है, इट इज नॉट सेइंग दैट वन कंट्री टू अनदर। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डैश अलाउज गुड टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये कह रहा है कि वन प्लेस टू अनदर, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज से संग सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है दैट वो कौन से ट्रांसपोर्ट से होती है, दैट इज योर वाटर ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये कह रहा है गुड्स टू बी डिलीवर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक ही कंट्री की बात कर रहा है। हाँ तो ठीक है, वाटरवेज से भी जा सकता है, ठीक है, वाटरवेज से भी आ सकता है सामान, रेलवे से भी आ सकता है, क्योंकि रेलवेज में भी एक ट्रेन होती है जिसका नाम होता है गुड ट्रेन। और वो उस ट्रेन का क्या काम होता है बेटा, उस ट्रेन का काम ही होता है गुड्स को कैरी करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फ्रॉम वन एरिया ऑफ द कंट्री टू अदर एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। और अब रोडवेज है, हाँ रोडवेज से भी कैरी होता है सामान बाय द ट्रक्स, ठीक है। आप लोगों ने देखा ना ट्रक से बहुत सामान कैरी होके एक पार्ट से दूसरे पार्ट आता है, तो ट्रक से भी हो सकता है। सो वाटरवेज इज आल्सो राइट, रेलवेज इज आल्सो राइट एंड रोडवेज इज आल्सो राइट। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या लिखें, इसमें ये हो गया ऑल ऑफ दिस, ऑल द आंसर्स आर right. Now let's see the next question. Fifth one, the type of transport we use does not depend on dash. First is distance, B option is time, option C climate, and option D money. ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन का मीनिंग है द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज डज नॉट डिपेंड ऑन डैश। देखो हमने थिंग्स टू रिमेंबर में ये बात हमने डिस्कस की थी कि बेटा जब भी हम कहीं जाते हैं, सो द थ्री फैक्टर विच कीप इन आवर माइंड, जब भी हम किसी नई प्लेस पे हमें कहीं भी जाना है तो तीन चीजों को हम अपने तीन फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखते हैं। पहले हम ये सोचते हैं कि जहां हम जा रहे हैं उस प्लेस का डिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा दूर मुझे जाना है कि कम दूर जाना है। उस बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लैंड ट्रांसपोर्ट से जाएंगे कि रेलवे से जाएंगे कि रोडवेज से जाएंगे कि वाटरवेज से जाएंगे, ठीक है। अनदर क्या है, टाइम। अब हम लोग डिस्टेंस से सोचते हैं, अब टाइम हमें जल्दी जाना है तो उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ऐसा ट्रांसपोर्ट लें जिसमें टाइम, अगर आपको कम टाइम में कहीं दूर जाना है तो डेफिनेटली आप एरोप्लेन के लिए जाओगे क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा शॉर्ट टाइम में। हाँ ये है कि आपकी मनी बहुत लगेगी, ठीक है। सो व्हेनेवर वी गो एनीवेयर, तो हम
थ्री थिंग्स को अपने माइंड में रखते हैं, दैट इज जहां हमें जाना है वहां का डिस्टेंस कितना है, वहां डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगेगा और कितनी मनी मुझे स्पेंड करनी पड़ेगी। तो कह रहा है द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज डज नॉट डिपेंड ऑन, और इसमें से कौन ऐसी चीज है जिसपे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, तो वो है क्लाइमेट, दैट इज द क्लाइमेट, दैट इज द क्लाइमेट। ठीक है, कहना था टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज डज नॉट डिपेंड ऑन क्लाइमेट। इसके कहने का मतलब है मान लो गर्मी के दिन में अगर आप जा रहे हो कहीं, आपका 1000 रुपीज अगर आपका टिकट चार्ज लग रहा है, तो क्या आप सर्दी में जाओगे, रेनी सीजन में जाओगे तो क्लाइमेट के देख के चार्ज चेंज होते हैं? ऐसा नहीं ना होता है, ऐसा नहीं ना होता है। तो ये कह रहा है कि हम लोग द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी डज नॉट डिपेंड ऑन, जब भी हम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड चूज करते हैं कहीं जाना है, तो हम तीन चीजों का ख्याल रखते हैं, डिस्टेंस का भी, टाइम का भी, मनी का। और ये कह रहा है we use does not depend on the type of transport we use does not depend on dash, किस जो भी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस पे नहीं डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।